Hello friends, welcomes to Biren's Academy. Today we will going to read about Romantic period. You can see the picture behind the Romanticism, that is the natural beauty or the natural scenery. Here the Romanticism means the love of nature. Love of nature means to love tree, water and flower, everything which is present in the nature. So the romanticism is also called as the age of revolution. That is the age of revolution. Age of revolution, the age of revolt, and the age of revival. Okay, so tell me why it is called the age of revolution? Because it is the revolution against the classical writing or the classical age. It is the revolution against the classical age, and it is also called as the age of revolt because it is the against the trend of writing of neoclassical age. At the same time, it is called as the age of revival. Here, it is a revival against the Elizabethan or Jacobean writing. Okay, then the Romanticism or the Romantic age started in 1798 and continued till 1837. Okay. Then the Romanticism or the Romantic age began to take root as a movement following the France Revolution. Okay, एटा कौन होता फ्रांस रिवोल्यूशन पर स्टार्ट होता कंटिन्यू होता केतेबेले को टाइम रे रोमांटिक माने रोमांटिसिज्म स्टार्ट है रोमांटिक एज स्टार्ट है दैट इज जितेबेले कि लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड है. ओके, द लिरिकल बैलेड which is written by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Okay, it is a collaborated work of William Wordsworth and Coleridge, and it started in 1798, and it is also the beginning of Romanticism in English literature. Okay, in 1800 मन रखिबो जे 1800 रे प्रीफेसटा एड होता जोटा कि आम एबे कहूँ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. ओके, देन हियर the basic theme, what is the theme they have taken? The love for nature, animal, landscape, means all the flora and fauna they have taken. That is the basic theme of this romantic writing or the romantic age literature. See, before going to discuss about the romanticism, we have to know about the age of reason. Okay, that is the classical age or the neoclassical age. In the age of reason, the author proclaimed. What the author proclaimed? The reason and judgment and concern with the universal experience, the value of society as a whole, the value of rules. Okay. Then what the romantic age author proclaimed? That is the imagination and emotion. See here. आमर क्लासिकल राइटर माने कौन करते रीजन और जजमेंट को नहीं कि लिखुले, बट आमर रोमांटिक एज राइटर माने को थीम को नौले द इमेजिनेशन आउ इमोशन को. देन दे आर कंसर्न विथ द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. ओके, द रोमांटिक एज राइटर दे आर टोटली कंसर्न अबाउट द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस विच दे हैव गेन्ड. द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एठी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को बहुत इंपोर्टेंट दिया होतला जोटा कि आमर रोमांटिक एज रे. बट इन क्लासिकल एज रे कौन करा होतला सोसाइटी एज ए होल को इम्पोर्टेंट दिया होतला. आउ एठी क्लासिकल एज रे बहुत इम्पोर्टेंट थिला रूल्स, बट इन रोमांटिक एज रे से टोटल वैल्यू दिया होतला फ्रीडम ऑफ राइटिंग, माने से फ्री स्टाइल लिखिबे. ओके, देन हियर आउ गोटे जिनस मन रखिबो
जे आमर हु इज कनसिडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर पचारिबो बा हु इज कनसिडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश पचारे तुम कौन लिखिबो मन रखिथिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट दैट इज थॉमस चैटरटन ChatterTon ओके थॉमस चैटरटन तुमको पचार क्वेश्चन हु इज कनसिडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश तमाने लिखिबो द थॉमस चैटरटन ओके सी द मेजर फीचर continued I have written it again why you have to understand it see the optimistic sense of renewal interest in the language and lives of common people love for unspoiled natural world revitalize interest in medieval subject and settings okay so एटी normally romantic is they are totally focused on the language okay they have taken the language of a common man देखिबो बेसिकली जेतोल तुम वर्ड्सवर्थ रो किछि भी पोएट्री पढुथुबो तांगर राइटिंग्स को पढुथुबो सेटा बहुत इजीली अंडरस्टूड माने आमे बहुत इजीली बुझी परिबा काहे कि they have taken the language of a common man okay they have taken the lives of rustic people that's why it is very much familiar to us when we are reading but classical age रे तुम देखिबो से माने कोन करथुले जे अरिस्टोक्रेटिक पीपल को लाइफ ऊपर नउथुले आ सेमान को राइटिंग पैटर्न सेमान को लाइफस्टाइल ऊपर ही बेस्ड रहउथला सेति पे एटा कॉमन मैन पढिया पे बहुत डिफिकल्ट होउथला सेति पे रोमांटिक राइटर्स से माने ट्राई करले जे ना आमे एमिति किछि लैंग्वेज नेबा बेसिकली मींस स्पेशली वर्ड्सवर्थ से नेले जे एमिति गोटे लैंग्वेज नेबा जोटा कि गोटे कॉमन मैन बुझी पारथुबो दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल ओके तापर हम देखिबा मेजर फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री पोएट्री रे कोन फीचर्स थिला जेमति मु कहली फ्रीली इमेजिनेटिव आइडियलाइजिंग फिक्शन एठी कोन होतला रोमांटिक पोएट्री गोटे इमेजिनेटिव थिला आ फिक्शनल वे रे थिला इमेजिनेशन एंड इमोशन एट बहुत इंपोर्टेंट थिला पर्टिकुलर एज अपोज टू जनरल और यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ओके एटा यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बा जनरल एक्सपीरियंस को पूरा अपोज थिला द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लिंक टू फ्रांस रिवोल्यूशन ओके एटी फ्रांस रिवोल्यूशन इंडिविजुअल लिंक तो निया हितला फ्रीडम रेदर देन अथॉरिटी एटी ना किछि अथॉरिटीज थिला एटी टोटली फ्रीडम ऊपर नहीं कि लिखा होतला तापर आमे जानिबा दे आमर रोमांटिक इज तीटा जेनेरेशन रे डिवाइड हितला गोटे होची फर्स्ट जनरेशन आ गोटे सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन और इंग्लिश पोएट्री बा रोमांटिक पोएट्री रे इंपोर्टेंट पोएट्स किए थे वर्ड्सवर्थ आउ कॉलरिज ओके बोथ द मैन मेट एट कैम्ब्रिज दे पब्लिश लिरिकल बैलेड इन 1798 सी रोमांटिक सी लिरिकल बैलेड दी जन को कोलाबोरेशन रे हेतला मु जेमती पूर्व रे कहिची आ एटा केबे हेतला 1798 रे देन seeks to abandon formal language of 1700s okay they have taken the formal language of 1770s balance between poets influence and real language okay the poet of real language ro balancing ta serthila then the balance between commonplace and supernatural even the commonplace or supernatural elements को मध्य से नहीं कि लिखुतले okay then apparent contradiction seeks to reveal what Wordsworth called the essential passion of the heart and what Collis calls our inward nature okay एठी दिटा contradictions थिला जे आमे जानिया दरकार जे हमरो वर्ड्सवर्थ कौन करथले जे नेचर भितरे से फील करथले गॉड को प्रेजेंस माने कौन नेचुरल एलिमेंट्स को से फील करुले बट एठी कॉलेज कौन कहउचंदी जे सेठी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट्स होचंदी ओके तो एटा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तंकर थिला ए नेचुरल एंड कॉमन प्लेस सुपर नेचुरल एंड रोमांटिक ऑल कंट्रीब्यूट टू बेसिक ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इमोशन ओके तो एठी कौन हला द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आउ आमर कौन रोमांटिक एलिमेंट्स जोटा कि नेचर ए दीटा जाक कंट्रीब्यूट करतला गोटे ह्यूमन माइंड और इमोशंस को ओके
Then we will move on to the second generation. Sorry, one second, I have to check, one second. Okay, the second generation is Byron and Shelley kids. Okay, all have tragical short life. एटी बायरन सेली किड्स एमाने कौन सेकेंड जनरेशन थिले बहुत गुड़ाए क्रिएशंस तांकर अच्छी आमे पढ़िया बहुत गुड़ाए पोएट्रीज तांकर बाहर बट से माने बहुत शॉर्ट लिव्ड थिले बायरन एंड सेली बोथ आर एरिस्टोक्रेटिक वेल एजुकेटेड लिव इंग्लैंड अंडर प्रेशर सी देमसेल्फ एट आउटकास्ट ओके से माने बहुत वेल एजुकेटेड थिले बट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली रू बिलोंग करथुले आ तांको बहुत अर्ली एज रो हुई इंग्लैंड छाड़िया पड़ता बायरन पॉपुलर वाइल सेली मिसअंडरस्टूड बायरन केतेबेले पॉपुलर हेले जेतेबेले सेली समस्त द्वारा मिसअंडरस्टूड हेले सेली को राइटिंग्स आ सेली को समस्ते भूल बुझिले सेतेबेले बायरन बहुत पॉपुलराइज्ड हेले किड्स प्रोड्यूस पोएट्री एट 24 एंड डाइड एट 25 है 24 इयर्स एज रे सी प्रोड्यूस करने को स्टार्ट कले आ 25 इयर्स रे तांकर डेथ भी हो जाता बहुत शॉर्ट पीरियड से लाइफ थिला सेकेंड जनरेशन रे ओके एटा थिला बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आमर रोमांटिक पीरियड आ परे आमे पढ़िबा जे गोटे गोटे पॉइंट को नहीं कि पढ़िबा जमती कि वर्ड्सवर्थ उपर बहुत किसी बहुत इंपोर्टेंट जिनस जाक अच्छी जमती कि लिरिकल बैलेड्स कोटा फर्स्ट राइटिंग्स थिला कोटा लास्ट राइटिंग थिला केतेटा राइटिंग्स तांकर अच्छी एमती बहुत गुड़ाए अच्छी जोटा कि गोटे गोटे को नहीं कि आमे पढ़िबा ओके देन जदि आमे किछि इंपोर्टेंट आउ एथि भितरु आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स मन रखिया पड़ियो जेमती कि आमे सुपरनेचुरल पोएट कहा को कहचे जे हमर सुपरनेचुरल पोएट होचंदी जेमती कि मु फर्स्ट कहली वर्ड्सवर्थ आउ कॉलरिज सुपरनेचुरल पोएट ए दी जण भितर होचंदी हमर कॉलरिज ओके कॉलरिज होचंदी हमर गोटे सुपरनेचुरल पोएट देन पोएट ऑफ ब्यूटी कहा कह जाए पोएट ऑफ ब्यूटी ये गुड़ा मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ाक पोएट ऑफ ब्यूटी होचंदी हमर जॉन किड्स तांकर राइटिंग्स गुड़ाक देखिबो माने पढ़िले बुझिपर बहुत बहुत सुंदर आकार रे डिस्क्राइब कराई देन आमर पोएट ऑफ लव कह जाउछि आमर सेली को देन पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म होचंदी आमर बायरन ओके एटा होछि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स एगुड़ा को मन रखिकी एग्जाम को जीवाक पड़ो आ इन डेप्थ क्वेश्चंस गुड़ाक एथिरु आसे ओके ओके देन आ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी जिते आम वर्ड्सवर्थ पढ़ा तांको ऊपर बहुत किसी एक्स्ट्रा जिनस भी पढ़ा ओके थैंक यू फॉर द क्लास हेलो फ्रेंड्स वेलकम्स टू Biren's Academy. In last class we have already discussed about the romantic age in English literature. Today we will discuss about the romantic poet William Wordsworth. I know everyone is familiar with William Wordsworth, but today I like to introduce him with a beautiful poem of him. That is, I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. This poem is about Wordsworth's writing style. Okay, by this poetry we can find that how much he loved nature. Okay, William Wordsworth, born on 1770 and died in the year 1850. William Wordsworth attended Cambridge University, toured in Europe continent and stayed in France for a short while, in favor of the French Revolution at first, but turned against it when horrified by the bloodshed it entertained. His important writing, विलियम वर्ड्सवर्थ को लाइफ हिस्ट्री विषय बहुत कम जानले भी चलो जेहेतु क्वेश्चंस बहुत कम आसे बट वी हैव टू
learn or we have to read more about his writings. तांको writings उपरे बहुत क्वेश्चंस आसे आ तांको writings रो जो जो पोएट्रीज गुड़ाक अच्छी पोएट्रिक्स रो स्टांजा गुड़ाक आसे आउ स्टांजा पढ़िबो को पोएट्री रो आसी सेटा भी पढ़िबो पुणी सेथरु आसे को ईयर सेटा पब्लिश्ड हेची तो ये सब को हमको बहुत इंपोर्टेंटली मन रखा पड़ो. सो हिज राइटिंग द लिरिकल बैलेड 1798 in collaboration with Coleridge. Okay, his writing the lyrical ballad published on 1798. Okay, and with the collaboration with S.T. Coleridge. In 1800, the preface was added to lyrical ballad. The second edition preface was added then. The prelude a long autobiographical poem. तांकर prelude गोटे writing जोटा कि तांकर long autobiographical poem थिला सेटा पोस्टमसली पब्लिश्ड होता तांकर डेथ पर एटा गोटे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. देन ही लव टू राइट लूसी पोएम्स बहुत लिखिथिले. तापरे रिक्लूस गोटे तांकर राइटिंग थिला. वर्ड्सवर्थ इन नेचर ए पिक्चर आम जापर जे वर्ड्सवर्थ को नेचुरल सिनेरीज गुड़ाक बहुत इनक्लूड करुले राइटिंग रे. जमती कि देखिपर आम जो ट्री अच्छी माउंटेन्स. ओके सेमती द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट इंस्पायर्ड द यंग वर्ड्सवर्थ. नेचर इज ए कॉमन थीम दैट कम टू बी फाउंड इन मेनी ऑफ हिज पोएम. द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट जेहेतु से लेक डिस्ट्रिक्ट रोते जाइए आ सेठू से बहुत इंस्पायर होते जे नेचर को गोटे कॉमन थीम नापे. जमती कि आम लास्ट क्लास रे डिस्कस करते द रोमांटिक राइटर मैंने कौन करते जे नेचर को ही नहीं से माने लिखुले जोटा कि कॉमन थीम तांकर थिला आउ कॉमन लैंग्वेज भी से माने नौतले जोटा कि कॉमन मेन्स लैंग्वेज से व्यवहार करते. वर्ड्सवर्थ पोएट्री उपरे डेफिनेशंस गोटे देइछन्ती जोटा कि बहुत फेमस डेफिनेशन. Wordsworth defines poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. The emotion is contemplated till the tranquility disappeared, and an emotion kinder to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in mind. वर्ड्सवर्थ कौन कहते पोएट्री को पोएट्री हूँ गोटे स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. एटा गोटे जितेबाला आम गोटे किसी भी सिचुएशंस को देखा सेटा स्पॉन्टानियसली पोएट्रीटा बाहरी आसे लिखापे. तो ये पोएट कौन करे जितेबाला किसी गोटे सिचुएशंस को देखे सी घर को जाकि मन पकाए द इमोशन विच रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी से जी जिनस से मन पकाए से एक्जाक्टली सेम से लिखेनी. तापर से कौन करे तार इमोशंस सी कौन इमोशनाली फील कला सेटा को से ऐड करके पोएट्रीटा लिखे. जमती कि पिक्चर प्रोसेस रे हम देखिपर द पोएटिक प्रोसेस. जमती कि गोटे ऑब्जेक्ट गोटे पोएट देखिला गोटे ऑब्जेक्ट को देन पोएट देखिला गोटे ऑब्जेक्ट को गोटे सेंसरी एक्सपीरियंस है तार इमोशंसटा से मिक्सअप है ता मेमोरी रे जहाँ जहाँ रिकलेक्टेड थिला से टाइम रो सिचुएशन रे सेटा सबू तार काइंडर इमोशंस सेठी ऐड हला. तापर से सबू मिक्सअप करके ता इमोशंस आउ रियल लाइफ सिचुएशंस सबू देखिकी से पोएट्रीटा बा पोएमटा क्रिएट करे. तापर आमे रीडर से पोएट्री को पढ़ू. से पोएट्री पढ़िला परे आम माइंड रे कौन इमोशंस आसुची आम माइंड रे कौन फीलिंग्स आसुची से हिसाब रे आमे पोएट्री को फील करूँ. फॉर एग्जांपल जदि आमे नेबा आजिकल आम बहुत गीत शुणा भारी पसंद करुचु कहीं जदि किसी भी दुखरे था आम सैड सॉन्ग शुणी दौचे बा किसी खुशी मुड्रे थाउचु बहुत भल भल सॉन्ग शुणी दौचे कहीं से पोएट जो सॉन्गटा से सिंगर गाउचंदी बा जो राइटर ताको लिखिचंदी लिरिसिस्ट सी कौन कर से इमोशंस रे सेटा लिखिचंदी बा से इमोशन रे सिंगर गोटे गाइचंदी. तापरे आमे सेटा को कहीं आमे सैड सॉन्ग बोली दुख समय रे सुनिया को पसंद करचे बा साइलेंट टाइम रे सुनिया को पसंद करचे जे आमे भी से इमोशंसटा फील करचे. बुझी पारले. देन नेक्स्ट वी वेर 3 persons with one soul. एठी वर्ड्सवर्थ कहते जे 3 persons किए किए
गोटे गोटे सिंगल सोल माने एटी वर्ड्सवर्थ 1794 वर्ड्सवर्थ was reunited with his sister Dorothy. Shortly after, he met another poet, Samuel Taylor Coleridge, and they became close friends. आमे जानचे जे से सिस्टर सहित बहुत जगार बुलिया को जाइए आठू सी से फिलिंग्स से नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकिन बहुत गुड़ाए पोएट्री लिखिं आउ से समय ही सामुएल टेलर को मिसिले कॉलेज को सी मिसी आउ से तीन जनकर राइट माने भावना और राइटिंग पैटर्नटा बहुत सिमिलर थिला आमे जमती फास्ट पढ़िले लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज सॉ द poetry of the neoclassical period as stale and unrelatable to the public. The two poets initiated the Romantic era with their collaborative creation, lyrical ballad, which contained old forms and new subject. बुझिपार जे वर्ड्सवर्थ और कॉलेज जो पोएट्री को देखिले न्यू क्लासिकल एरार सेटा कौन लगिला बहुत पुराना लगिला आ सी लगिला यहाँ नॉर्मल पब्लिक को एप्रिशिएबल नुह तो से दिज मिसिकी गोटे रोमांटिक एरा क्रिएट कले जोटा कि पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड रु होता आ सेठी कौन से ओल्ड फॉर्म्स को रखिले बट सब्जेक्ट पैटर्नटा न्यू सब्जेक्ट को नेले जमती कि रोमांटिक सब्जेक्ट बा नेचुरल थीम्स लिरिकल बैलेड लिरिकल कौन ओल्ड फॉर्म्स ब्रॉट बैक टू पोएट्री द नर्सरी राइम्स बाइबलिकल स्पिरिचुअल द पॉपुलर बैलेड ए सब जगह इंक्लूड थिला न्यू सब्जेक्ट कौन थिला पोएट्री रो चिल्ड्रेन एंड वुमेन कॉमन फोक एंड पीजेंट्स साइकोलॉजिकल एब्रिएशंस एंड अल्टर मेंटल स्टेट idiocy and madness the nature and purpose of poetry itself the Gothic ए सब जाक तांकर न्यू फॉर्म्स थिला न्यू थीम्स गुड़ाक से इनक्लूडेड होता तापरे आमे जानिबा जे लिरिकल बैलेडटा बहुत इंपोर्टेंट जेहेतु से क्वेश्चंस पचारि पारे द फर्स्ट पोएट्री लिरिकल बैलेड रो कोडा थिला आमर द फर्स्ट कलेक्शन जो फर्स्ट पोएट्री आमर थिला द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर जोटा कि एस टी कॉलेज कर राइटिंग थिला आ लास्ट पोएट्री लिरिकल बैलेड कोड थिला द टिंटन एबी एटा मन रखा पड़ो फर्स्ट होची राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर जोटा कि कॉलेज लिखिंट लास्ट होची विलियम वर्ड्सवर्थ कर टिंटन एबी एटा दीटा होची पोएम माने फर्स्ट और लास्ट पोएम जोटा कि मन रखी जा पड़ो तापरे आमर गॉड सेव द एंशिएंट माराइनर फ्रॉम द फ्रेंड्स दैट प्लग थ्रीथ अस व्हाई लुक्स्ट thou so with my crossbow I shot the albatross. Okay, this is the line from Coleridge Ancient Mariner. For I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity, nor hearts nor rating, though of ample power to chasten and subdue. एटा हूँ आमर टिंटन एबीर गोटे स्टैंजा quotations from lyrical ballad. Poetry is the breath and final spirit of all knowledge. It is the impassioned expressions which is in the contents of all science. एटा मन रखा पड़ो एटा विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री उपरे गोटे लिरिकल बैलेड रे कोटेशंसटा देथिले. द नेक्स्ट इमिटेशंस ऑफ इमोर्टालिटी ओड ताप्रु भी मुझे कोटेशन आनी गोटे आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विथ अस आवर लाइफ स्टार हैथ had elsewhere its setting and cometh from afar, not in entire forgetfulness and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory do we come from God who is our home. एटा हूँ आम इमिटेशन ऑफ इमोर्टालिटी एंड ओड एति छाड़ला आमको बहुत आउ किसी जिनस भी मन रखा पड़ो जमती कि
वर्ड्सवर्थ टोटल सनेट केते लिखिथिले टोटल तांकर सनेट थिला 523 एटा मन रखिबो टोटल सनेट तांकर देन वर्ड्सवर्थ को बहुत गुड़ाए माने राइटर्स माने पोएट गुड़ाक राइटर गुड़ाक बहुत गुड़ाए वे डाकुले जमती कि जॉन किट्स तांको इगोइस्टिक सबलाइम बोली कहउथले इगोइस्टिक सबलाइम जॉन किट्स तांको इगोइस्टिक सबलाइम बोली कहउथले एटा मन रखिबे एटा किए कहउथले जॉन किट्स देन नेक्स्ट आ किछि पॉइंट अछि जेमति कि आमर वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड इज कंसिडर हिज मैग्नम ओपस देन मैथ्यू अर्नल्ड इन एन एंथोलॉजी he described everything about वर्ड्सवर्थ किए तांकर एंथोलॉजी रे वर्ड्सवर्थ विषय रे डिस्क्राइब करथले सी होचंदी मैथ्यू अर्नल्ड मैथ्यू अर्नल्ड मैथ्यू अर्नल्ड डिस्क्राइब करथिले वर्ड्सवर्थ विषय रे तांकर इन एन एंथोलॉजी रे तापरे एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो एग्जाम रे बहुत बार आसे जेमति कि लॉस्ट लीडर बोली कि वर्ड्सवर्थ को किए कहउथले वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर बोली कहउथले ए लॉस्ट लीडर लॉस्ट लीडर कहउथले ब्राउनिंग आउ हैजलिट एटा मन रखिबो ब्राउनिंग आउ हैजलिट ब्राउनिंग हैजलिट तांको लॉस्ट लीडर बोली कहउथले देन जेसी रैनसम तांको जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोली कहउथले जेसी रैनसम एटा मन रखिबो इंपोर्टेंट जेसी रैनसम तांको कौन कहउथले जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोली कहउथले आउ एथिरे आ गोटे पॉइंट भी मन रखिबो इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत गुड़ा अच्छी विलियम वर्ड्सवर्थ करो जेमती कि आमर प्रिल्यूड को कह जाउतला कौन ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड प्रिल्यूड को कौन कह जाउतला ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड और लॉस्ट लीडर बोले किए कहते वर्ड्सवर्थ को पूर्वर कहले जमती कि रॉबर्ट ब्राउनिंग लॉस्ट लीडर बोले कहते रॉबर्ट ब्राउनिंग आउ हैजलिट टोटाल केते सोनेट थिला 523 सोनेट्स थिला तापरे तांकर लूसी पोएम बा तांकर सॉलिटरी रिपर पोएम अच्छी जोटा कि छोट पोएट्री बहुत इंपोर्टेंट पोएम सेटा भी मन रखी जीवो सॉलिटरी रिपर तापरे आमर तांकर अच्छी मु जेमती फर्स्ट रे इंट्रोड्यूस करेली डैफोडिल आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड आंकर आउ बहुत गुड़े अच्छी जमती कि टिंटन एबी लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी ए पोएम गुड़ाक आंकर यहाँ बहुत इंपोर्टेंट गोटे मन रखियो सी गोटे प्ले लिखिथिले गोटे प्ले जोटा कि 1795 रो 1797 ए मझिरे पब्लिश्ड होता 1795 रो 1797 मझिरे पब्लिश्ड होता गोटे प्ले वर्ड्सवर्थ गोटे प्ले थिला जोटा कि बेसी इंपोर्टेंट मन रखिबो जमती कि द बॉर्डरर द बॉर्डरर्स है
एटा हूँ गोटे वर्स्ट ट्रेजेडी था द मर्डरर ए वर्स्ट ट्रेजेडी वर्स्ट ट्रेजेडी मर्डरर द मर्डरर ए वर्स्ट ट्रेजेडी थिला जोटा कि कौन ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी थ्री ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम दिस प्ले वाज रिटन तांकर तो लुसी पोएम बहुत फेमस तुम जानच तांकर लुसी पोएम 5टा पोएम कलेक्शंस रो थिला लुसी पोएम देन in 1814 Wordsworth published the Excursion as the second of the three part work of the Recluse रो गोटे सेकेंड पार्ट एक्सकर्सन बोली कि पब्लिश्ड होता ओके एंड आउ बहुत गुड़ाए पोएट्री तांकर अच्छी जो थ्रो कि पोएट्री कलेक्शंस रो किछि स्टैंजा भी तुम मन रखिकी जीव जेहेतु एग्जाम रे तर स्टैंजास भी पकई दिए जे को पोएट्री रो से स्टैंजाटा निया जाइछि और सेमती पकाए तो सेटा टिके मन रखिकी जीव देन पीबी सेली कहते वर्ड्सवर्थ को कहते मोराल आउंच एटा भी मन रखिब किए तांको क्वेश्चन आसी पारे मोराल आउंच मोराल आउंच बोली तांको किए कहते एटा मन रखिब तांको कहते मोराल आउंच बोली पीबी सेली एटा मन रखियो पीबी सेली तांको मोराल आउंच बोली कहते देन से सेली वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज भी कहते सिंपल और डल बोली की क्रिटिसिजम्स भी पड़ो बहुत गुड़े राइटर्स तांको ऊपर बहुत भल भल कमेंट्स भी देछन सेटा पड़ो पुणी क्रिटिसिजम जेहेतु बहुत कम मिली मे बी क्रिटिसिजम्स भी क्वेश्चन आसी पारे जे तांको किए क्रिटिसाइज करतुले विलियम वर्ड्सवर्थ को सेली क्रिटिसाइज करतुले जे सिंपल एंड डल बोली की तांको कहतले सिंपल एंड डल सॉरी वन सेकेंड कहते सिंपल एंड डल किए कहते सिंपल एंड डल सी होती सेली क्रिटिसाइज करते सिंपल एंड डल बोलिकी सेमती टेनिसन वर्ड्सवर्थ को कहते ही हैज उटर्ड नथिंग बेस माने एटा सब होचे तांकर क्रिटिसिजम राइटर माने तांको क्रिटिसाइज करचंदी टेनिसन कौन कहते वर्ड्सवर्थ को टेनिसन्स कहते वर्ड्सवर्थ को ही हैज uttered he has uttered nothing base बोली कहते टेनिसन्स तांको सेमती बहुत गुड़े अच्छी आउ लिरिकल बैलेड इट कंटेन्स टोटल 23 poems 9 by Wordsworth and 4 by Coleridge एटा मन रखि से पचारि परिबो हमरो प्री लिरिकल बैलेड रे केतेटा पोएम अछि टोटल होछि 23 जोटा कि 19 लिखचंती वर्ड्सवर्थ आ 4 लिखचंती कॉलरिज ओके तो यहाँ सब मन रखीज बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ाक अच्छी जमती कि आमर कॉलेज से 4टा पोएट्री प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड रे देथिले तांकर 4टा राइटिंग्स जेहेतु 4टा थिला तुम यहाँ 4टा मन रखिकी जीव गोटे होची द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर ओके राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर तापरे होची तांकर देन नेक्स्ट होची द फॉस्टर मदर टेल
सेकेंड तांकर एटा देन थर्ड द नाइटेंगल okay, then the last dungeon last hochi the dungeon okay the dungeon एटा होछि तांकर इम्पोर्टेंट राइटिंग आ किछि कोटेशंस भी अच्छी लिरिकल बैलेड रे जेमति कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर रेस्ट एंड बी थैंकफुल एंड द रेस्ट एंड बी थैंकफुल एमती बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट कोटेशंस भी अच्छे जोड़ा मन रखिकी जीवाकू पड़ो ओके थैंक यू फॉर द क्लास नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर पोएट हेलो फ्रेंड्स वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सैमुअल टेलर कोलरिज इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ एज आई टोल्ड बिफोर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज बोथ आर फ्रेंड्स and they are the founder of Romantic movement. He was an English poet, literary critic and philosopher who with his friend Wordsworth was a founder of Romantic movement. He was one among the Lake poets. This term was coined by Francis Joffrey in 1817. It is important however je who coined the term Lake poet. Okay, who coined the term Lake poet? Francis Joffrey in 1817. एटा मन रखिबो He wrote the poem The Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan as well as a prose work Biographia Literaria. एठी The Rime of the Ancient Mariner जोटा कि हमरो Preface to Lyrical Ballad रो फर्स्ट पोएट्री थिला सेटा मन रखिबो देन कुबला खान एंड बायोग्राफी लिटरेरिया एटा बहुत इंपोर्टेंट राइटिंग जो थ्रू बहुत गुड़ा क्वेश्चंस आसे आ इवन कोटेशंस गुड़ा को आसे पचारे को पोएट्री रु बा को वर्क रु तांकर एटा कोटेशंसटा मार्क कराई छी ही हेल्प्ड इन इंट्रोड्यूसिंग जर्मन आइडियलिस्टिक फिलोसफी टू इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर Coleridge the term willing suspension of disbelief coined the term willing suspension of disbelief एटी लिखिबो Coleridge willing suspension of disbelief गोटे टर्म्सटा कॉइन करथिले एटी ऐड कर दबो कॉइन एटी coined the term willing suspension of disbelief ओके willing suspension of disbelief माने कोन जे एटा गोटे सपोज आम किसी गोटे सर्कस देखुचे ओके सर्कस जो देखुचे सबू जी सीन जो सर्कस रे होची सेटा सबू जगह कौन आमर माने आउट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम ओके सपोज गोटे झीलटा ठिया होती तार बेकटा कटिगला से टू पार्ट हो जाइए जोटा देखा होची सेटा आम बिलीव कर छोट छुआ मैंने कौन भावे जे ना से दुईटा पार्ट होगला बट दुईटा पार्ट है गोटे मनीषटा जॉइंट हो बट आम से बिलीफ सिस्टम रे रोचे ओके लाइक ए सर्कस इट मीन्स willing suspension of disbelief माने कौन ए क्रिटिकल फैकल्टी एंड बिलीफ दैट अनबिलीवेबल और sacrifice और realism and logic for the sake of enjoyment for the sake of enjoyment पाई आमे ताकू बिलीव करचे ओके देन Coleridge wrote 48 sonnet Coleridge केतेटा sonnet लिखिथिले 48 sonnet his conversations poem it's a group of 8 poem आ सी बहुत फेमस थिले एस.टी. Coleridge तांकर कन्वर्सेशनल पोएम्स पाई जेमती कि से कन्वर्सेशनल पोएम्स रो किछ एग्जांपल द लाइम ट्री बोरो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट द नाइटेंगल ये सब जाक से पोएट्री कलेक्शंस रो से 8टा कलेक्शन भितरु ही ट्रांसलेटेड द ड्रामाटिक ट्रायलॉजी वेल्स्टेन ऑफ जर्मन पोएट Friedrich Engel Friedrich Sinclair
एटी फेड्रिक ट्रायोलॉजी मैंने बुझीपार ट्रायोलॉजी मैंने 3टा राइटिंग्स जोटा कि को एक्जिस्टेड थी माने गोटे पर गोटे जमी आम 3टा पार्ट कौचे सेमती 3टा फॉर्मेट 3टा राइटिंग्स थी ओके दैट इज ट्रायोलॉजी इन 1809 कॉलरिज अगेन पब्लिश्ड ए जर्नल एंटाइटल द फ्रेंड एटा क्वेश्चन आसीबो जे को जर्नल रे से पब्लिश करथले कॉलरिज सेटा होची द फ्रेंड Coleridge wrote a review of N.A. Radcliffe's The Mad Monk से गोटे रिव्यू भी लिखी Coleridge ता ना होची द मैड मॉन्क एटा कहा ऊपर थिला रिव्यू ऑन N.A. Radcliffe ऊपर थिला देन एठी गोटे टर्म कॉइन करथले जर्मन आइडियलिस्टिक इट वाज ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट emerged in Germany in late 18th and early 19th century. The most notable thinker of the movement were Friedrich Schiller, Friedrich Hegel. ए दी जन पुणी आ बहुत गुड़ाए राइटर अच्छा जे कि आमर जर्मन आइडियलिस्टिक व्यू देथिले ओके देन according to Coleridge human mind has 3 faculties. What is that? 3 faculties, that is primary imagination, secondary imagination and fancy. Primary imagination, secondary imagination and fancy. गोटे ह्यूमन ब्रेन रे एतिक जिनसटा काम करे एठी गोटे पिक्चर नहीं छोटिया पिक्चरटा जो पीडीएफ दिया जीवो टी देखिवो जे प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन रो कनेक्शंस केमती होची प्राइमरी इमेजिनेशन हला जिते आम कि गोटे जिनस को देखा देखला सांगे सांगे आम ब्रेन जहाँ इमाजिन है माने जहाँ क्रिएट है सेटा हूँ प्राइमरी इमेजिनेशन तापर सेकेंडरी इमेजिनेशंस कौन जहाँ आम देखीचे जो इमेजिनेशन आमर क्रिएट होची देन आउ किसी जिनस से ऐड करके आम लिखुचे सेटा हूँ सेकेंडरी इमेजिनेशन माने फर्स्ट प्राइमरी इमेजिनेशन को छाड़ी आम किसी सेकेंडरी इमेजिनेशंस को सेथिरे ऐड करचे ऐड करके लिखा होची फैंसी कौन फैंसी माने आमर राइटिंग पैटर्न बा राइटिंग स्टाइल बा आमर अलिट्रेशंस एसोनेंस सिमिली ए जो जिनस फॉर्म्स गुड़ा लिटरेरी फॉर्म्स डिवाइसेस गुड़ाक जिते आम यूज करके लिखुचे फॉर एग्जांपल जदि आम डेली लाइफ रो किछि गोटे एग्जांपल लेबा सॉन्ग जेतोळे गीत गुड़े होची बा गीत लेखा होची राइटर माने सॉरी लिरिसिस्ट से गीतटा से लिखुचंदी ओके जेतेबेले से लिखुचंदी से किछि गोटे इमेजिन करके लिखुचंदी स्टिल से इमेजिनेशंस रे आमे जेतेबेले सुनछे हमर निजर इमेजिनेशंस ऐड करछे माने सी गोटे इमेजिनेशन लिखिचंदी आमे जेतेबेले सुनिचे सेठी हमर फीलिंग्स आम इमोशनटा भी ऐड करछे सेटा होचे हमर सेकेंडरी इमेजिनेशंस ओके आ से जो राइमिंग पैटर्न्स थाउची रिदमिक स्टाइल थाउची से सब जगह होचे हमर फैंसी देन कॉलेज मेजर वर्क रे लिरिकल बैलेड जो कि लास्ट टाइम कही एथिरे तांकर 4टा पोएट्री ऐड होता लिरिकल बैलेड रे क्रिस्टाबेल 1816 रे पब्लिश्ड होता बायोग्राफिया लिटरेरिया देन फ्रॉस्ट एट मिडनाइट फ्रांस एन ओड द पेन्स ऑफ स्लीप 1816 ओके देन कन्वर्सेशंस पोएम जोटी कि 18 पोएम्स थिला कन्वर्सेशंस पोएम्स रे 18 पोएम्स थिला डिजेक्शन एन ओड देन कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट देन कुबला खान ए विजन 1816 एति भितर बहुत इंपोर्टेंट राइटिंग्स तांकर होची जोथि को मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीटेडली आसे गोटे होची बायोग्राफिया लिटरेरिया देन सॉरी लिरिकल बैलेड बायोग्राफिया लिटरेरिया देन आमर होची कुबला खान ए 3टा मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आसे आ कुबला खान रु कोटेशंस भी आसीबार बहुत गुड़े चांसेस अच्छी से जो स्टैंजा गोटे स्टैंजा भी आसार चांसेस अच्छी जमती आउ किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी जे चार्ल्स लेम चार्ल्स लेम कॉलेज को ए डैमेज्ड आर्कएंजल बोली कहते ए डैमेज्ड
damaged archangel. damaged archangel कहते किए कहते लेम, चार्ल्स लेम. ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो. देन तापर अच्छी आमर साइकोसोमेटिक. साइकोसोमेटिक गोटे वर्ड अच्छी फेज साइकोसोमेटिक. टर्म्सटा किए कॉइन करते यहाँ गोटे टर्म. टर्म्सटा किए कॉइन करते यहाँ भी कॉलरिज ही कॉइन करते. साइकोसोमेटिक. देन तांकू कॉलरिज को कह जाउथला हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म. कॉलरिज आल्सो नोन एज हाई प्रीस्ट ऑफ romanticism. High priest of romanticism. ओके, तांकर आउ किछि इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छी जमती कि हाँ मोटिवलेस मैलिग्निटी ए फ्रेज. मोटिवलेस मैलिग्निटी गोटे फ्रेज से देते. मोटिवलेस मैलिग्निटी. मोटिवलेस मैलिग्निटी गोटे फ्रेज कॉलरिज देते जिते ओथेलोर यागो को देखते से ये वर्डटा देते मोटिवलेस मैलिग्निटी. तापरे से सब बड़े गोटे फ्रेजटा यूज करते. से फ्रेजटा है द हाई रोड ऑफ लाइफ. एटा मन रखिबो. ए फ्रेजटा कहार पचारि पड़िबो. द हाई रोड ऑफ लाइफ. द हाई रोड ऑफ लाइफ एटा थिला तांकर इम्पोर्टेंट फ्रेज. ओके, देन ए सेक ऑफ हेमलेट इन हिमसेल्फ. कॉलरिज सेड दैट ही हैड ए सेक ऑफ हेमलेट इन हिमसेल्फ. एटा गोटे फ्रेज जे से कहते एग्जाम आसीपर. द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म क्या कह जाऊँगी. ए स्मेक ऑफ हेमलेट इन हिमसेल्फ किए कहते किए फील करते. बा द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ किए यूज करते. एमती क्वेश्चन आसपर. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. दैट इज द स्मेक ऑफ हेमलेट इन हिमसेल्फ. हेमलेट इन हिमसेल्फ अच्छी इम्पोर्टेंट कोटेशंस पॉइंट गुड़ाक ए सब बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु. मुझे कहली से 48टा सनेट लिखते. टोटाल सनेट केतेटा थिला 48. मन रखियो से 48 सनेट लिखिते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट Coleridge, S.T. Coleridge. This is very important points which I already discussed, and you have to remember the primary, secondary imaginations and fancy. Okay, then who coined the term, the lake poet. Then the other important points which I already discussed in the last. Okay, these are the important points about S.T. Coleridge. Thank you for today's class. Hello friends, welcomes to Biren's Academy. Today we will going to read about P.B. Shelley, the another important poet of romantic literature romantic
poet in English language. He was a finest lyrics and epic poet in English language. His time period was 1792 to 1822. Okay, his time period was 1792 to 1822. He is best known for classical poem as Osmandia, The Triumph of Life, Ode to the West Wind, Music, The Revolt of Islam, When the Soft Voice Die, The Cloud, Queen Mab. ଏତିକି ପଏମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏମ୍ସ ହେଉଛି ଓଜମାଣ୍ଡିଆ, ଓଡ୍ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ, ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇସଲାମ, କ୍ୱିନ୍ ମେବ୍. William Godwin was the father-in-law of P.B. Shelley. William Godwin P.B. Shelleyଙ୍କର father-in-law ଥିଲେ. ତାଙ୍କ ଡଟର ଥିଲେ William Godwinଙ୍କର Mary Shelley ବା Mary Wollstonecraft, WILLSTONCRAFT. Okay, Mary Wollstonecraft. Shelley theory of economics and morality has a profound influence on Karl Marx, Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi. Shelleyଙ୍କର theory of economic and morality जोटा कि बहुत इन्फ्लुएंस करथिला काहाकू कार्ल मार्क्स को लियो टॉल्स्टॉय देन महात्मा गांधी एमानकू बहुत इन्फ्लुएंस पकेइथिला. He was born in England, Sussex. His first publications was a Gothic novel, Zastrozzi, a romance. तांकर फर्स्ट पब्लिकेशंस थिला गथिक नॉवेल गोटे जास्ट्रोजी ए रोमांस. जेतेबेले आमे किछि भी राइटर बा पोएट को ऊपर पढ़िबा तार फर्स्ट क्रिएशंसटा बहुत इंपोर्टेंट. एग्जाम रे रिपीटेडली आसे तांकर फर्स्ट राइटिंग्स. देन सेली द सेंसी इज डेडिकेटेड टू लेहंट. ओके, सेलिंकर सेंसी काहाकू डेडिकेटेड थिला, काहाकू पई से लिखिथिले, लेहंट को पई लिखिथिले. सेली डेडिकेटेड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम टू मेरी सेली. ओके, से गोटे रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखिथिले जोटा कि मेरी सेली तांको वाइफ को पई सेटा थिला. बायरन इंट्रोड्यूस सेली टू किड्स. ओके, बाय किए इंट्रोड्यूस करथिले सेली को किड्स को सहित से होचनी बायरन. आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म ही गेन्ड द अटेंशन्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रे केतेबेले से बहुत फेमस हेले जेतेबेले तांकर गोटे पब्लिकेशंस हैला द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. ओके, ऑन हिज ग्रेव द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट वाज इनस्क्राइब्ड. कौन थिला? नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड but doth suffer a sea change into something rich and strange. कौन? Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. क्वेश्चंस केमती आसीबो? मे बी कोटेशंस दबो पचारि पारे सेलिंग को ग्रेव रे जोड़ा इनस्क्राइब्ड होइतला शेक्सपियर को राइटिंग्स रु आसीथिला, को राइटिंग्स रु से नैथिले. Then he wrote a preface to his wife Frankenstein. Frankenstein सेलिंगर फर्स्ट वाइफ थिले. सेकेंड वाइफ होचंदी मेरी सेली बा मेरी विलस्टनक्राफ्ट. एसी स्विनबर्न कॉल्ड सेली ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड. एसी स्विनबर्न सेली कौन डाकुले? ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड बोलिकी कहूले. क्वेश्चन आसे ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड क्या कह जाइथिला बा एमती क्वेश्चन आसे ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड सेलिंग को किए देथिले बा किए डाकुले. अंडरस्टूड? हिज फेमस लाइन आवर स्वीटेस्ट आर दोज दैट टेल्स द सैडेस्ट थॉट. हिज फेमस लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स द सैडेस्ट थॉट. एटा होची टू ए स्काइलर आछि. तांकर गोटे इंपोर्टेंट राइटिंग्स थिला. सेली wrote 18 sonnet. सेलिंगर टोटल 18 sonnet थिला.
Major works of Shelley: Zastrozzi, A Romance, 1810; Adonais, 1821; A Defense of Poetry; Juliana and Meadow, 1819; Astro, or the Spirit of Solitude; Ode to the West Wind; Queen Maeve, 1813; The Revolt of Islam, England, 1819; Prometheus Unbound, 1820. ଏତିକି ରାଇଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟିଂସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋମେଥିୟସ୍ ଅନବାଉଣ୍ଡ, ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇସଲାମ, କୁଇନ୍ ମେବ୍, ଓଡ୍ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଡୋନେସ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟିଂସ୍ ରହିବ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ସେଲି ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାକ୍ ଏ ବ୍ୟାଲେଡ୍। ସେଲି ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାକ୍ ଏ ବ୍ୟାଲେଡ୍। କ'ଣ? ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାକ୍ ଏ ବ୍ୟାଲେଡ୍। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାକ୍ ଏ ବ୍ୟାଲେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଟାରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ ସେଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟିକାଲ୍ ୱାର୍କ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟିକାଲ୍ ୱାର୍କ published on 1812. It is a poetical work published on 1812. Then this is a very important writing. It is a criticism. एटा गोटे criticism थिला बा satirical attack थिला कहा पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बोली कि एटा गोटे satirical attack थिला। पुणी तांकर बहुत important writing जोटा कि होची एडोनाइस। तांकर एडोनाइस एटा थिला डेडिकेटेड टू जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, okay, this work written on 1821. Adonais is a work, it is written on 1821. It appeared after the death of John Keats. Okay, it is a mourning song. It is a mourning song. And आमे जाने से किड्स को डेथ केमती हितला? किड्स को डेथ ट्यूबरक्लोसिस रे हितला, बा जोटा के टीबी बोली कहूचे। बट सेली कौन भावुले? ही गॉट द इम्प्रेशंस दैट हिज डेथ वाज ड्यू टू द ब्रुटल क्रिटिसिजम ऑफ हिज पोएट्री। से भावुले जे तांकर डेथ कौन पे हितला? जे तांकर राइटिंग्स, किड्स को डेथ कौन पे हितला? जे किड्स को राइटिंग जति थिला से भावुले जे सेटा क्रिटिसाइज होता से टाइम रे, से क्रिटिसिजम को से सही न पारिकी तांकर डेथ होता बोलिकी से भाविकी एडोनाइसटा लिखिथिले, तांको डेडिकेटेड करथिले एई सॉन्गटा। तांकर गुडा इम्पोर्टेंट कोटेशंस अछि, जेमति कि ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। इन डिफेंस ऑफ पोएट्री रे से गुडा कोटेशंस देथिले, हु इज ए पोएट। एज पर सेली द पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। कोन? द पोएट आर द poet are the unacknowledged legislator of the world. Legislator of the world. कौन कहते? According to Shelley, the poets are the unacknowledged legislator of the world. Question एमती आसीबो, the unacknowledged legislator of the world, एटा कहार कोटेशंस थिला? ओके, द सेली कर पोएट्स ऊपर कौन ओपिनियन थिला, एमती भी क्वेश्चन आसी पारे। देन मुझे कही पूर्वर से केतटा सोनेट लिखिथिले? 18. he has written 18 sonnet. Okay, and the defense of poetry was published on 1821. It was written on 1821, but it published on 1840. Okay, and why he has written that defense of poetry?
It is a response to Thomas Love Peacock. It is a response to Thomas Love Peacock. It is a response to Thomas Love Peacock, the four ages of poetry. Okay, the four ages of poetry. Okay, it is a response to Thomas Love Peacock, the four ages of poetry. एटा गोटे तांकर रेस्पॉन्स थिला. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होची जेमती कि आमर सर्ट नेम अच्छी बा निकनेम अच्छी स्कूल कॉलेज रे फ्रेंड्स माने बहुत अलग अलग निकनेम रे भी डाकती सेमिति एट इटन कॉलेज रे एट ETON एट इटन कॉलेज सेमती सेलिंग को डका होतला पीबी सेलिंग को मेड सेली तांको मेड सेली बोली कि समस्ते डाकुथिले. Okay, these are the very important points you have to keep in your mind for the examinations. Okay, thank you for the class. Hello friends, welcome to Biren's Academy. You can see the picture here. This picture was about Lord Byron and the time period was 1788 to 1824. The full name of Lord Byron was George Gordon Noel Byron. Lord Byron is famous for his lengthy poems Don Juan, Child Herald Pilgrimage, and the short lyric She Walks in Beauty. These are the few famous writings of Lord Byron, Don Juan, Child Herald Pilgrimage, and the short lyric She Walks in Beauty. He lived in Italy for 7 years. He joined the Greek War of Independence, for which he reserved as a national hero. Okay, he rose as a national hero. ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ର ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ. He died at the age of 36. He became a celebrity after the publication of Child Herald Pilgrimage. Lady Caroline Lamb called him mad, bad and dangerous to know. Lady Caroline Lamb ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ mad, bad and dangerous to know. Child Herald Pilgrimage, its canto is an autobiographical epic poem showing influence of Spencer. ତାଙ୍କର Child Herald Pilgrimage तार गोटे कैंटो कौन करता यहाँ गोटे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थिला जोठी कि स्पेंसर को इन्फ्लुएंस देखापे आमको मिल जे लॉर्ड बायरन बहुत इन्फ्लुएंस होते स्पेंसर को द्वारा. Goethe called his Don Juan a work of boundless genius. Goethe कौन कहते तांकर डॉन जुआन को a work of boundless genius. Goethe said about him, he has a sharp and penetrating view of the world, song of his own. एटा बहुत इंपोर्टेंट कोटेशंस पचारिबो ए कोटेशंस कहा पे थिला बा किए ए कोटेशंसटा देथिले. He has a sharp and penetrating view of the world, song of his own. Okay, we'll find very less about Lord Byron, but he was a very famous poet of Romantic era. His major works are Child Herald Pilgrimage, published on 1812, Persiana, The Stage of Corinth, Don Juan, Hours of Idleness, English Words and Scottish Reviewer, Prometheus, Manfred, She Walks in Beauty. Okay, these are the very important work of Lord Byron. एटी बहुत इंपोर्टेंट राइटिंग रहिबो तांकर
जे आमर डॉन जुआन कौन डॉन जुआन इट इज ए सैटारिकल पोएम ऑफ बायरन ओके डॉन जुआन गोटे इट इज ए सैटारिकल पोएम it is a satirical poem okay and it has 17 cantos and it is also called as an epic आकु जेहेतु 17 cantos थिला आकु epic बोली मध्य कुआ जाउतला epic means it is a heroic poem that means जमती कि आमर हिंदू धर्म रे रामायण महाभारत जोटा कि आमर कौन बहुत हॉली बुक सेमती एटा गोटे हीरोइक पोएम थिला बट इट इज एन एपिक इट पब्लिश फर्स्ट 2 कैंटोस एनॉर्मसली इन 1819 रे तार फर्स्ट 2 कैंटोस पब्लिश होइथिला एंड थर्ड कैंटो रे कौन लिखा था डिटरमिनेशंस फॉर माने सी भाबुथिले जे से वर्ड्सवर्थ आ कॉलेज को मध्य बहुत एडमायर करथिले तो से थर्ड कैंटो रे से एक्सप्रेस करचंदी द डिटरमिनेशंस फॉर पोएट्स एज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज ओके but this Don Juan has not completed the total 17 cantos okay because of his death एटा कंप्लीट होगा पूर्व ही तांकर डेथ हो जाइथिला बट एटा कोन इट वाज रिटन इन 17टा कैंटोस रे लिखा हैतला बट लास्ट कैंटोसटा सेटा कंप्लीट हे नथला देन तांकर आउ इंपोर्टेंट वर्क रहइबो जेन कि मैनफ्रीड पब्लिश्ड ऑन 1817 मैनफ्रीड केबे पब्लिश हैतला 1817 रे देन द ब्राइड ऑफ एबेडोस आउटे थिला द ब्राइड ऑफ एबेडोस जो पब्लिश था 1813 रे ओके दिस इज ऑल अबाउट लॉर्ड बायरन वी विल गेट वेरी लेस अबाउट हिम एंड द राइटिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट से बहुत कम राइटिंग लिखी बट तांकर जेतिक भी राइटिंग्स थिला सेथिपे से बहुत फेमस होते आउ जेतिक तांकर राइटिंग्स होती से सबू गुड़ा राइटिंग्स तांकर बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लॉर्ड बायरनकर एति राइटिंग्स उपरू बहुत गुड़े क्वेश्चन आसे ओके थैंक यू फॉर द क्लास हेलो फ्रेंड्स वेलकम्स टू बीरेंस एकेडमी टुडे वी विल गोइंग टू रीड अबाउट another important romantic poet John Keats. His time period was 1798 to 1821. 1798 to 1821. He is regarded as the romantic poet of second generation along with Shelley and Byron. Okay? He is regarded as the romantic poet of second generation along with Shelley and Byron. His first poem, An Imitation of Spenser. His first poem is An Imitation of Spenser. The Three Young Poets is a collaborative work of Shelley, Keats and Reynolds published by Hunt. The Three Young Poets. This was the writing of John Keats. Is a collaborative work of Shelley, Keats and Reynolds, which was published by Hunt. On first looking at Champman's Homer is a sonnet by Keats. On first looking at Champman's Homer. Shelley memorized Keats in his poem Adonais. Last class रे मु डिस्कस करतली पीबी सेली को विषय रे आउ पीबी सेली किड्स को मेमोरी रे एडोनाइज गोटे राइटिंग लिखिथिले दैट इज एडोनाइज Shelley memorized Keats in his poem Adonais. Here the major work of Keats major work, that is Ode of Keats are Ode to Melancholy, Ode to Nightingale, Ode to Psyche, Ode on a Grecian On, Ode to Autumn and Ode to Indolence. से एति 6टा Ode लिखी थिले
एथ्रु बहुत इम्पोर्टेंट बहुत टाइम क्वेश्चन आसीची आउ क्वेश्चन रिपीटेडली आसुची भी जे ए पोएट्री रो स्टैंजा किछि गुटे स्टैंजा देब से पचारिबो ए राइट ए स्टैंजाटा को पोएट्री रू बा को ओड रू आस्थिला बा किए लिखिथिले जेमते कि द रिपीटेड क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम Ode to Nightingale, Ode on Aggression on, Ode to Autumn. Okay, then O Solitude, Endymion. Endymion is also a very important writing of John Keats. Okay, the famous line of this poem, which is known by all of the people, that is, a thing of beauty is a joy forever. Okay, a thing of beauty is joy forever. Joy forever. Okay, a thing of beauty is joy forever is a famous line from Endymion, which is published on 1818. Endymion केबे published हेतला 1818 रे आ एठो ए दाउची ओडे important line. Then and it is Endymion is also a first long poem of Keats. एटा मने रखिबो, it is the first long poem. Okay, first long poem of Keats. First long poem of Keats. Then the Eve of Saint Agnes, La Bella Danson Mercy, Lamia, Isabella, Life, Letters, Literary Remains of John Keats. These are the famous writings of John Keats. Then आउ किछि बहुत इंपोर्टेंट जिनस अच्छी जेमती कि जॉन कीट्स इज रेपुटेड फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट. एटा मन रखिबो, why he is reputed for his Hellenic spirit. Hellenic Hellenic spirit. सेमती Ode on Aggression on. Ode on Aggression on भी गोटे इंपोर्टेंट लाइन मन रख जेमती कि ब्यूटी इज ट्रूथ इज ब्यूटी. मोस्ट ऑफ द टाइम आमे ए कोटेशन गुड़ाक व्यवहार करूँ, बट एटा रेयरली स्टूडेंट्स जानी थे जे ये कोटेशंस को राइटिंग्स रु आसी. एठी मन रख Ode on Aggression on नु ब्यूटी इज ट्रूथ and truth is beauty. Beauty is truth and truth is beauty. Then is Tombstone reads, Tombstone रे तांकर लिखा हैतला, here lies one whose name was writ in the water. Tombstone रे लिखा हैतला, here lies one here lies one whose name was written in the water. Writ in the water. Here lies one whose name was writ in the water. टम्बस्टोन रे लिखा हैतला. देखो तांकर 1819 year, the year 1819 is called Annus Mirabilis. Annus Mirabilis कौन मन रखो 1819 ए year टाकू तांकर Annus Mirabilis बोली कहा जातला. ANNUS Annus
MIRABILIS. Annus mirabilis कौन? that means a remarkable or auspicious year. जमती देखो को गोटे ईयर रे आमर बहुत भल भल काम होइथिबो बा बहुत माने से ईयर आम बहुत किसी अचिवमेंट करथिबा हला जोटा कि मेमोरेबल ईयर होइथिबो ताको कहने कि आम सपोज भाव 2023 इज अ बेस्ट ईयर फॉर मी कहीं जे बहुत गुड़ा अचिवमेंट होइछि बा बहुत गुड़ा इम्पोर्टाट जिनस जोटा मुझे चाहूली मो लाइफ रे सेटा होइछि सेमिति आमे जेमती कहचे 2023 बा 2022 कहाँ होइथिबो सेमिति तांकर लाइफ स्पैन भितरे 1819 तांकर गोटे ऑस्पेशियस ईयर थिला सेथिपे ताको एनस मिराबिलिस बोली कहतले कहीं कह जाता बिकॉज ऑफ हिज मोस्ट ऑफ द पोएट्रीज पब्लिश्ड ऑन 1819 बुझिपार कहीं एनस मिराबिलिस कह जाता 1819 को बिकॉज ऑफ हिज मोस्ट ऑफ द पोएट्रीज पब्लिश्ड ऑन दिस ईयर अंडरस्टूड देन द नेक्स्ट तांकर आउ किछि इंपोर्टेंट जिनस देखिबा जमती कि नेगेटिव कैपेबिलिटी ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी कौन कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी नेगेटिव कैपेबिलिटी केबे 1817 रे से ए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करथिले ए कॉन्सेप्ट माने कौन नेगेटिव कैपेबिलिटी सी नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन विच द ऑथर और द पोएट हैज टू लीव हिज ओरिजिन एंड एंटर इनटू हिज वर्क एज बिलोंग्स टू ए कैरेक्टर ऑफ इट ओके ही हैज नॉट टू थिंक व्हाट ही इज ही हैज टू एम्फासाइज हिज कैरेक्टर जेते बळे गोटे ऑथर बा गोटे पोएट कौन करुची जेतेबेले से गोटे किसी पोएट्री बा किसी ऑथर किसी गोटे क्रिएट करची से कैरेक्टर भितर को ताको एंटर करिया को पड़िबो तार निजर कैरेक्टर को छाड़ी से कैरेक्टर एंटर करिया पड़िबो माने कोन से कैरेक्टर को से फील करिवो सेतेबेलू तार एम्फासाइजिंग माने से इंपोर्टेंस दबो से एम्फासाइज करिवो जो कैरेक्टर को से लिखिची ताहले से बेटर वे रे लिखि परिवो सपोज गोटे मूवी रे गोटे एक्टर तांकु किसी गोटे कैरेक्टर दिखाई तो केतेबेले आमको लाइवली लगे माने आमे फील करिपरिबा से कैरेक्टर जेतेबेले से एक्टर से कैरेक्टर भितर पूरा पशि जाइतबो ना कि आमे ओरिजिनल से कैरेक्टर को देखुचे बट से जो राइटिंग्स लिखा है जो हीरो बा हीरोइन होइचंती से कैरेक्टर भितर से पशि जाइथाउची तो आमे भी से कैरेक्टर को ही फील करचे आमे काहे कहचे एटा गोटे बेस्ट मूवी बा बेस्ट सॉन्ग कहीं कहे जो जेहेतु से कैरेक्टर भितर से माने पशि था ताकू कह जाए नेगेटिव कैपेबिलिटी आ गोटे जिनस भी देते सी कौन इगोइस्टिक सबलाइम है से ये फ्रेजटा यूज करते इगोइस्टिक सबलाइम एटा मन रख इगोइस्टिक सबलाइम ओके इगोइस्टिक सबलाइम देन तांकर ऑटो अटम रो गोटे स्टैंजर दुटा लाइन मन रख गोटे कोटेशंसटा ओपनिंग लाइनटा जमती सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज bosom फ्रेंड ऑफ द maturing sun okay season of mist and mellow fruitlessness close bosom friend of the maturing sun এটা ଗୋଟେ important line মনে রাখিব okay so these are the important works and important quotations and important phrases introduced by John Keats okay and I also told you that Keats is known for his Hellenic spirit. Keats is known for his Hellenic 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 spirit. Okay, these are the important things you have to remember.
आउटे मन रख ओड टू नाइटेंगल भी पब्लिश होता 1819 रे ओड टू नाइटेंगल 1819 ओड टू नाइटेंगल 1819 okay these are the very important things which I taught you, and you have to remember all the points and all the writings of John Keats because he is a very famous poet and writer of romantic age. Understood? Then thank you for the class.